Hello, students. Today we are here to understand a very important concept of class 12, that is accounting treatment of goodwill at the time of admission of a partner. We expect that there will be a question from this topic in your pre-board exams and board exams of the term 1. तो आइए शुरू करते हैं the topic accounting treatment of goodwill. देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कुछ केसेस होते हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं और डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट जर्नल एंट्रीज. So there are certain cases, but before I start with the cases of admission of a partner, there is a one common case, that is when goodwill account already appears in the books. The first point is very, very important to understand, which is when goodwill account already appears in the books. Books means balance sheet. अगर हमारी फर्म ने एक बैलेंस शीट बनाई हुई है अपनी, और उस बैलेंस शीट की एसेट साइड पर अगर टर्म गुडविल अपीयर हो रही है with whatever amount, and for example A and B are partners, so this is the balance sheet of A and B, और यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट 10,000 की है. ऐसा क्यों है? क्योंकि दिस गुडविल वाज परचेज्ड बाय अस. इस गुडविल को हमने कभी पीछे इन द पास्ट परचेज किया होगा, दैट इज व्हाई एसेट साइड पर ये परचेज गुडविल आ चुकी है. जब कभी भी एडमिशन होगा स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर इट इज कंपल्सरी टू राइट इट ऑफ the goodwill already appearing in the books. It's compulsory to write it off. तो राइट ऑफ करेंगे गुडविल को, क्योंकि ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की होती है. व्हाट इज द जर्नल एंट्री वी विल पास? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और करंट अकाउंट डेबिट. करंट अकाउंट कब ओपन करेंगे? व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स. यू नो वेरी वेल. फिक्स कैपिटल के केस में करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग या नॉर्मल क्वेश्चन के केस में कैपिटल अकाउंट. सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. नरेशन याद रखिएगा, गुडविल रिटर्न ऑफ. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर कि यहाँ पर हमारा ओल्ड रेशो लगेगा. क्यों लगेगा ओल्ड रेशो? बिकॉज द गुडविल बिलोंग्स टू ओल्ड पार्टनर्स. दिस इज द गुडविल विच दे हैव परचेज्ड इन द पास्ट. तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की होती है, इसीलिए ओल्ड रेशो में इसको हम राइट इट ऑफ करते हैं. एंड इट इज कंपल्सरी टू राइट ऑफ द गुडविल. दिस इज द बेसिक पॉइंट which you all should know. But now the most important thing which we are going to start today are the different situations, different cases of goodwill. You can see very well the case 1, and a very interesting picture is displayed with this. When a new partner joins the firm, तो जब कभी भी न्यू पार्टनर फॉर्म ज्वाइन करेगा तो वो प्रीमियम मनी स्पेशल लेकर आएगा फॉर्म ओल्ड पार्टनर्स के लिए, फॉर देयर पास्ट सर्विसेज, for their hard work and efforts put in the past. So premium for goodwill is paid privately by the new partner. अगर आप देखेंगे एग्जामिनेशन में कि टर्म प्राइवेटली लिखा है, so always remember we will not pass any entry, means it will not be recorded in the books. आप देख सकते हैं under the table transaction है, partners are not entrusted to record it in the books. We will simply ignore this thing and we will write no entry for payment made by the new partner to the old partners privately. तो न्यू पार्टनर जब प्रीमियम लेकर आता है तो he brings premium for the partners who have put in efforts in the past for bringing the name of the partnership firm, for making the good reputation in the market. For that reputation, the old partners ask for the payment of a special amount which is known as premium for goodwill. Case 2, when premium for goodwill is brought in cash or check by the new partner and it is retained in the business. Last time हमने देखा कि प्राइवेटी वाला केस था तो we have ignored, but इस बार कहता है कि it is to be retained in the business. पार्टनर गुडविल लेकर आएगा और प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट बिजनेस में रहेगा. तो काइंडली अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एंट्री हमारी आप देख सकते हैं बड़ी सिंपल है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. ही इज ब्रिंगिंग प्रीमियम मनी, so to premium for goodwill and to new partner capital account. Definitely जब पार्टनर बिजनेस में आएंगे तो कुछ कैपिटल लेकर आएंगे अपनी. सपोज ही इज ब्रिंगिंग 2 लाख कैपिटल and 10,000 suppose he is bringing for goodwill. तो टोटल कैश
or total check amount he is bringing is 2,10,000. Right? This is the first entry for bringing capital and for bringing premium also in cash or through check. So अब इन्होंने नए पार्टनर को एडमिशन दिया. You can see in the picture that they have put in efforts in the past. They are the old partners, or you can say the sacrificing partners who have put in efforts. अब गुडविल के लिए कौन एलिजिबल होगा? ये जो स्पेशल अमाउंट प्रीमियम का लेकर आते हैं. कैपिटल कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. कैपिटल इज नेवर डिस्ट्रीब्यूटेड. We never distribute the capital. Never distribute capital because this belongs to the new partner only, not to the sacrificing partners or anybody else. So never distribute capital. और जब कभी भी प्रीमियम क्रेडिट होगा, whenever premium account is credited students, इसको डेबिट करना कंपल्सरी है टू क्लोज इट डाउन. और डेबिट तो हम कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रीमियम फॉर गुडविल. ये जो 10,000 रुपीज का गुडविल का प्रीमियम है दैट ही इज ब्रिंगिंग विल बी गिवन टू विच पार्टनर्स. यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग की जगह ओल्ड पार्टनर्स. प्लीज रिमेंबर इट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नॉट द ओल्ड पार्टनर्स. ऐसा क्यों है? बिकॉज समटाइम इट सो हैपन कि ओल्ड पार्टनर्स में से एक पार्टनर ही सैक्रिफाइस करता है, कभी कभी दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं, कभी एक सैक्रिफाइस करता है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू चेक कि प्रीमियम फॉर गुडविल की जो एलिजिबिलिटी है दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स. एंड इफ नथिंग इज गिवन तो फिर बोथ द ओल्ड पार्टनर्स आर कंसीडर्ड एज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. फॉर एग्जांपल ए एंड बी वर पार्टनर्स sharing profits in the ratio of 3:2. They have made a good name in the market after putting a lot of efforts. Then they have admitted C for 1/5 share. और C जो बिजनेस में एंट्री लिया he brought 10,000 as premium, जैसा कि हमने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया है. न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट 10,000. अब आगे क्वेश्चन में वो कुछ नहीं बोलता है हु हैज सैक्रिफाइस्ड व्हाट, बस रेशो हमको ओल्ड रेशो देकर छोड़ देता है. तो दिस प्रीमियम विल बी डिवाइडेड बिटवीन A एंड B. सो व्हाट एंट्री शैल बी पास? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन बन जाएंगे? A एंड B. तो ओल्ड रेशो ही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाएगा and we will divide it as 6,000 and 4,000 in their old ratio. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि they have admitted C and sacrificed their share equally, A and B sacrificed equally to accommodate, sacrifice their share of profit equally. इन दोनों ने इस 1/5 को equally share of profit sacrifice किया. तो अगर their share of profit equally, in that situation students sacrificing ratio हमारी कितनी हो जाएगी? 1:1. तो फिर ये गुडविल 6,000 और 4,000 नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगी. दिस विल बी डिवाइडेड एज 5,000 5,000. नो डाउट कि हमारा रेशो 3:2 है, लेकिन तब भी गुडविल विल बी डिवाइडेड इन 1:1 रेशो. व्हाई? बिकॉज द सैक्रिफाइस इज गिवन सेपरेटली. और अगर ये सैक्रिफाइस सिर्फ ए ने ही करा होता कि सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड A sacrificed this share, which he took entirely from A. So this entire 10,000 would have gone to Mr. A only. तो फिर हम premium for goodwill to A's capital करके पूरा 10,000 goodwill का amount A को ही दे देते. ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा. अगर कुछ ना दे रखा हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो मान लिया जाता है. अगर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशो दे रखा है कि किस रेशो में सैक्रिफाइस किया है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. और अगर कोई एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करता है तो ही becomes eligible to receive the goodwill, another partner is not eligible to receive the goodwill. तो गुडविल को लाने की एंट्री, कैपिटल को लाने की एंट्री आपको समझ में आ गई होगी. उसके बाद हमने सेकंड एंट्री करी प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की. ये एंट्री करनी कंपल्सरी है. अगर प्रीमियम का अकाउंट आपने यहाँ ओपन किया है तो डेबिट करके क्लोज करना होगा और ट्रांसफर करना होगा कौन से पार्टनर्स के अकाउंट में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट. नाउ स्टूडेंट्स, गुडविल को लाना और उसको रिटेन करने का कॉन्सेप्ट तो आप लोगों ने समझ लिया है, but a very important point associated with this concept is here. That is what, children? Most important I have written. If any of the old partners gain instead of sacrifice due to change in ratio, then he will compensate to sacrificing partner
he will also compensate to the sacrificing partner and the entry for distribution of premium for goodwill will be passed as under. देखिएगा प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हमने क्या समझाई है आपको कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. दिस इज द नॉर्मल एंट्री वी नो कि प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे बिकॉज लाने के टाइम पर प्रीमियम क्रेडिट होता है. नाउ वी विल डेबिट द अकाउंट और जाकर मिलेगा ये पैसा किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. But in between, this is a new concept, children. This is a very important thing which has come in between. कि अगर आप जब इसमें रेशो निकालेंगे, for example, students, I explain you with the help of one example, which will make you very clear. But थोड़ा सा अभी आप अपनी रिमेम्बरिंग के लिए ये याद रखिएगा, क्या आपको हमेशा एग्जामिनेशन में बोलना नहीं है कि सर अगर किसी ओल्ड पार्टनर का गेन आ जाता है, if any old partners share which share sacrifice, if any old partners share of sacrifice comes negative means gain. Negative means gain. In that situation he will also be debited. ए और बी पार्टनर है और ए का शेयर मान लीजिए गेन करके आ जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो. इन दैट सिचुएशन ए विल आल्सो बी डेबिटेड अलोंग विद प्रीमियम. और जो दूसरा पार्टनर होगा he will be the sacrificing partner. तो entire premium new partner brought as well as the gaining partner who is the old partner will also compensate to the sacrificing partner. इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा. लेकिन जो पॉइंट आपने याद रखना है स्टूडेंट्स, वो यही याद रखना है इसमें कि वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन. मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल भी चलिए मैं समझा देता हूँ कि रेशो कैसे नेगेटिव आएगी. सपोज करिएगा देयर आर थ्री पार्टनर्स, टू पार्टनर्स ए एंड बी and their ratio is for example 3:1. They admit C as a partner and the new ratio becomes for example 2:2:1, right? अब आप बताएं how to calculate the sacrificing ratio students. What is the formula of sacrificing ratio? Ratio का formula तो आपको याद होना चाहिए. Sacrificing ratio formula is what? Old ratio minus new ratio. You know very well. तो old ratio minus new ratio formula अगर आप लगाएं इसमें तो old ratio is given 3/4 and 1/4 of A and B. कभी भी अगर हमको न्यू रेशो दे रखी है वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशो कंपल्सरीली, अदरवाइज ओल्ड रेशो को आप मान सकते हो. एंड न्यू रेशो इज गिवन 2/5, 2/5 एंड 1/5. सो द न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5. लेकिन हमने निकालना है अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो. 20, 4, 5 the 20 and 5, 3 the 15 minus 10, it is coming 5/20. This is 20. 5 minus 8, it is coming 3/20 negative. तो आप देख सकते हो सैक्रिफाइसिंग नेगेटिव आ रहा है. अब अगर C फॉर एग्जाम्पल ही इज ब्रिंगिंग say goodwill is given to us in the question. Suppose goodwill of the firm is given like 5 lakh rupees is the goodwill given in the question. अब C तो undoubtedly 1/5 C का शेयर कितना हो जाएगा जो वो गुडविल कैश में लेकर आए हैं? दैट विल बी 1 लाख. राइट स्टूडेंट्स? अब इस 5 लाख में से B विल ऑल्सो कॉम्पनसेट टू A. सो B शेयर ऑफ गुडविल भी आपको निकालना होगा. फर्म की गुडविल 5 लाख और B का जो गेन है वो कितना है? एक्चुअल गेन, दैट इज 3/20. So we will be calculating 50,000 divided by 2 is 25,000 into 3, that is 75,000 students. Okay. By cancelling the 0, we get 50,000 divided by 2, 25 into 3, 75. So entry for premium distribution will be going like this. Premium for goodwill account debit. कितना रुपीस आएगा? Total goodwill brought in by C is 1 lakh. ये C का goodwill हो गया.
and we will compensate, that is gaining partner, because he has gained from out of A's share. So he will pay 75,000. तो ये पूरा प्रीमियम और ये प्रीमियम जो गुडविल का शेयर बी करेगा कॉम्पनसेशन, ये सारा पैसा किसको मिलेगा? ए को. तो ए विल गेट 1,75,000. आई होप अब समझ में आ गया होगा आपके कि प्रीमियम का मनी जितना उसका गेन निकला उसके अकॉर्डिंग, एंड द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल रिसीव द एंटायर मनी. सो प्लीज रिमेंबर, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर तो होता है, लेकिन गेनिंग पार्टनर को भी डेबिट करना पड़ सकता है. नेक्स्ट केस, when premium for goodwill brought in cash or check by a new partner which is withdrawn by the sacrificing partners fully or partly. Students, third case में क्या है कि partner is bringing capital and premium both. हम एक छोटा सा example लेके चल रहे हैं कि C is bringing for example 2 lakh rupees capital and 10,000 rupees as premium. So total cash or bank he is bringing to 2 lakhs and 10,000. अब क्या होता है कि ये 10,000 रुपीज का जो प्रीमियम गुडविल का है ये डेबिट होना कंपलसरी है, बिकॉज वंस इट इज क्रेडिटेड मस्ट बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन इज कंपलसरी, डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट. एंड ये मिल जाएगा किस पार्टनर्स को? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को. अगर ए और बी दोनों हैं तो ए और बी विल गेट 6,000 and 4,000, और अगर अकेले ए है तो ए विल गेट एंटायर 10,000 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. नाउ द न्यू पॉइंट व्हिच हैज कम, दैट इज द थर्ड पॉइंट. पार्टनर उस गुडविल को रिटेन करना नहीं चाहते हैं. पार्टनर वांट्स टू विथड्रॉ द गुडविल. विच पार्टनर? ओनली सैक्रिफाइसिंग. आप क्यों बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग? बिकॉज सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ही एलिजिबल होते हैं गुडविल के लिए. प्रीमियम मिलता ही उनको है, तो जिसको मिलेगा वही तो विथड्रॉ कर सकता है. तो अगर पार्टनर सीधा पहुंचता है एटीएम मशीन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, he goes to the ATM machine and he withdraws his premium from his capital account. तो क्या एंट्री आएगी? जो पार्टनर भी गुडविल विथड्रॉ करने पहुंचेगा एटीएम मशीन पर, sacrificing partner capital account will be debited to cash account. Say for example, both the partners have withdrawn the goodwill. A और B दोनों को 6,000 4,000 मिला और दोनों ने विड्रॉ कर लिया. तो क्या जनरल एंट्री आएगी स्टूडेंट्स? Sacrificing partners capital account debit to cash account. इन दोनों को 6,000 4,000 मिला था, इन्होंने फुल अमाउंट विड्रॉ कर लिया. तो विड्रॉ करने वाला पॉइंट याद रखिएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आ सकता है आपके पास. A's capital, B's capital to cash account. Else अगर ये लोग हाफ विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री आएगी? एंट्री तो यही रहेगी बट अमाउंट विल चेंज. इसका हाफ कर दीजिएगा आप. A's capital 3, B's capital 2 and C's capital 5,000. तो वन मार्कर में आपसे पूछ सकता है who will be debited in the case of withdrawal of the premium for goodwill, or and with what amount cash will be credited at the time of withdrawal of goodwill. तो गुडविल विड्रॉ करने के लिए भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू शुड कीप योरसेल्फ फुल्ली प्रिपेयर्ड. तो तीनों एंट्रीज आपको याद होनी चाहिए. गुडविल प्रीमियम कैश में लाने के लिए, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करना कंपलसरी है. प्रीमियम को विड्रॉ तभी करेंगे जब वो क्वेश्चन में लिख कर देगा कि वेदर गुडविल इज विड्रॉन फुल्ली और पार्शियली. दिस इज द थर्ड केस स्टूडेंट्स. फोर्थ केस कमिंग अप, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन काइंड. काइंड मींस instead of bringing goodwill in cash, he can bring premium for goodwill in kind as well. कि हम हमारे नया पार्टनर हमसे कहते हैं कि सर आई एम नॉट इन अ पोजीशन कि हम गुडविल को कैश में लेकर आए, तो फर्म अलाउ कर सकती है, ओल्ड पार्टनर्स अलाउ कर सकते हैं कि आप कैश की जगह यू कैन ब्रिंग सन्ड्री एसेट्स. तो सन्ड्री एसेट में क्या आ सकता है? सन्ड्री एसेट्स कैन कंसिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ एसेट. जैसे कि कैश तो है ही एक एसेट, कैश अकाउंट डेबिट. वो अपने पास से डेटर्स जो उसके किसी के होंगे अपने ओल्ड डेटर्स, उनको भी ला सकता है कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट, एनी टाइप ऑफ एसेट ही कैन ब्रिंग इन काइंड. सो वॉट एवर द वैल्यू ऑफ एसेट कम्स, सबको डेबिट करते चले जाएंगे. से फॉर एग्जाम्पल ही इज ब्रिंगिंग 5 लाख रुपीज एसेट्स, राइट. सारे एसेट्स की वैल्यू 5 लाख आ गई. आपको सारे एसेट्स के नेम सेपरेटली लिखने होंगे, ये आपको याद रखना है, द वे आई हैव रिटन हियर. ओके. अब हमसे वो बोलता है, यहाँ पर भी एक वन मार्कर क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स. अब वो हमसे बोलता है कि सर 5 लाख में से ये बताइए कि हिज कैपिटल इज 1 लाख रुपीज. ओके, ही ब्रॉट 1 लाख एज कैपिटल. या वो हमसे ये ना बोले कि 1 लाख कैपिटल लाए, बस वो हमसे बोलता है कि सर वन मार्क क्वेश्चन देखिए कितना स्मार्टली यहाँ डिजाइन हो सकता है कि फर्म की गुडविल इस टाइम जो है वो 10 लाख रुपीज,
और न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर से फॉर एग्जांपल सी इज अ न्यू पार्टनर एंड हिज शेयर इज 1/5, तो सी का शेयर 1/5 है, तो 10 लाख का 1/5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2 लाख। अब वो आपसे पूछता है बताइए हाउ मच कैपिटल ही ब्रॉट, तो टोटल एसेट्स जो लेकर आता है वो कैपिटल और गुडविल दोनों के अगेंस्ट होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जैसा भी क्वेश्चन में लिखा होगा। तो अगर 5 लाख में उसकी कैपिटल भी है और उसका प्रीमियम भी है, अब वो आपसे 1 मार्कर में क्या पूछता है कि बेटा प्रीमियम और कैपिटल के अगेंस्ट तो वो 5 लाख लेकर आया, तो बताइए उसकी कैपिटल कितनी होगी? तो सबसे पहले तो आप उसका गुडविल का शेयर निकालेंगे, तो प्रीमियम फॉर गुडविल विल बिकम 2 lakhs, नंबर 1। नंबर 2, अब 5 लाख में से 2 लाख गुडविल हो गया, तो हाउ मच इज द प्रीमियम स्टूडेंट्स? द प्रीमियम विल बी 3 lakh rupees, right? So this is how we will get a 1 mark question in the examinations also. बोर्ड में काफी एक्सपेक्टेड रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। और फिर वही जब प्रीमियम क्रेडिट होगा तो डेबिट करना कंपलसरी है, डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री वही पुरानी आएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब कभी भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जहां जहां यूज होगा, एवरीवेयर वी हैव टू यूज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करना है स्टूडेंट्स, राइट? बिकॉज द वर्ड सैक्रिफाइसिंग इज यूज्ड इन द एंट्री। Now the fourth case and fifth case are very interesting ones. When a new partner brings only a part of his share of goodwill. अब वो पूरी गुडविल जितनी उसको कही गई है लाने के लिए वो उतनी गुडविल लेकर नहीं आते। How to manage with this situation? So अगर हमसे पार्टनर से हमने कहा न्यू पार्टनर से कि सर यू हैव टू ब्रिंग 50,000 एज प्रीमियम, और वो 50,000 प्रीमियम हमने उससे लाने के लिए कहा है, एंड ही ब्रिंग्स ओनली से फॉर एग्जांपल 35,000 एज प्रीमियम, और वो लेकर आता है 2 लाख रुपीज कैपिटल। तो आउट ऑफ 50,000, आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, जो फॉर्म ने उसको लाने के लिए कहा था शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम जो लाना था वो लाना था उसने 50,000, और 50 में से पार्टनर लेकर आए हैं 35, तो हाउ मच ही कुड नॉट ब्रिंग? 15,000। प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अनपेड प्रीमियम, जितना भी प्रीमियम अनपेड रह गया पार्टनर्स, अनपेड प्रीमियम इज हाउ मच? 50,000 minus 35,000, that is 15,000। ये जो अनपेड प्रीमियम फॉर गुडविल होता है हमारा, ये कौन से अकाउंट में डेबिट होगा? न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आनी ही आनी है हमारी। क्या बोला? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। दिस इज अ नॉर्मल एंट्री कि जो प्रीमियम लाया वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट विल आल्सो बी डेबिटेड विद द अनपेड प्रीमियम। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल ऊपर हमने 35,000 से क्रेडिट किया है, तो यहाँ 35 से डेबिट कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, अनपेड प्रीमियम कितना है उनका? 15,000। तो प्लीज स्टूडेंट्स डू रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जितना अनपेड प्रीमियम है और जितना पेड प्रीमियम है दोनों को ऐड करके ही डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है पार्टनर्स। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ जितना प्रीमियम कैश में आएगा वही पार्टनर्स को मिलता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स गेट्स द प्रीमियम whatever is paid or even unpaid। तो अब ये 50,000 का प्रीमियम है, सपोज करिएगा ए और बी पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो वही है 3:2, तो ए और बी इस पूरे 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ना कि सिर्फ 35,000 को। दे विल डिस्ट्रीब्यूट द पेड एज वेल एज अनपेड प्रीमियम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा अनपेड का कि हमें न्यू पार्टनर का कौन सा अकाउंट ओपन करना है? करंट अकाउंट। और यही करंट अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट के तौर पे चला जाता है। व्हाई? बिकॉज द न्यू पार्टनर बिकम्स द डेटर फॉर द अनपेड अमाउंट, दैट इज व्हाई ही दिस हिज करंट अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड लास्ट केस हमारा जो फिफ्थ है, दैट इज व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। लुक हाउ अपसेट द न्यू पार्टनर इज कि ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। तो जब गुडविल कैश में आती ही नहीं है तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि सिर्फ कैपिटल ही आ जाती है बिजनेस में, अगर वो लेकर आए हैं। ऑब्वियसली ही विल जॉइन द बिजनेस विद सम कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल तो आप कर देंगे 2 लाख रुपीज, नो प्रॉब्लम। बट अगर उसने 50,000 का प्रीमियम लाना था, प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द न्यू पार्टनर, प्रीमियम फॉर गुडविल विच द न्यू पार्टनर हैज टू ब्रिंग वाज 50,000 रुपीज, और वो ये नहीं ला सके
इन दैट सिचुएशन आपको पता ही है लास्ट केस में हमने करा था कि कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट विल बी ओपन एंड विल बी गिवन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. तो अगर हम इसकी नॉर्मल एंट्री बनाकर देखें, suppose C is the partner who could not bring his goodwill. So instead of capital account, students, we will be opening current account debit. तो 50,000 रुपीज का करंट अकाउंट हम डेबिट कर देंगे विद व्हाट, अनपेड प्रीमियम. और क्या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ये प्रीमियम दिया जाएगा? 100% इट विल बी पेड टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. और जो भी उनका रेशो होगा, सपोज देयर रेशो इज 3:2, द सैक्रिफाइसिंग एंड ओल्ड आर सेम. So in that situation, 30 and 20 will be distributed between the sacrificing partners, not the old partners. Please remember. So पांचों केस अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने, और गुडविल रिटर्न ऑफ वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है. जस्ट हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द थिंग्स. फर्स्ट केस हमने क्या सीखा? गुडविल लाएगा और वो प्राइवेटली होगी. बल्कि उससे भी पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि गुडविल अगर बुक्स में एग्जिस्ट कर रही है तो इसको राइट ऑफ करते हैं. सेकेंड केस हमने सीखा, जब गुडविल वो प्राइवेटली लाता है, पार्टनर्स डज नॉट वांट टू रिकॉर्ड द गुडविल, तो नो एंट्री होती है. अगर वो कैश में लाता है, सेकंड केस में क्या है हमारा, रिटेन होता है. तो कैश टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन विच रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो. नेक्स्ट है, अगर उसी ओल्ड पार्टनर में किसी पार्टनर का गेन आ जाए तो फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो सैक्रिफाइस ना होकर गेन बन जाए, नेगेटिव आ जाए, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा हमें. उस पार्टनर का भी, ओल्ड पार्टनर का भी करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट करना होगा, जो पार्टनर गुडविल कॉम्पनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर के साथ साथ. राइट. थर्ड है, जब वो विड्रॉ कर देता है गुडविल को, तो गुडविल को लाने की एंट्री होगी पहले कंपल्सरीली, फिर लाने के बाद पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके बाद वो विड्रॉ होगी. डोंट फॉरगेट दिस थिंग. ऐसा मत करिएगा कि डायरेक्ट विड्रॉ की एंट्री कर लें. और आप बताइएगा विड्रॉ की एंट्री क्या आती है हमारी इसमें? विड्रॉ की एंट्री सिंपल है. व्हाट इज द एंट्री फॉर विड्रॉल ऑफ गुडविल? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि गुडविल मिली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को है, और किसी को तो गुडविल मिली नहीं है. और अगर वो काइंड में लाता है तो ऑल एसेट्स whatever he brought in kind will be debited and capital and premium will be credited. इसमें आपसे कैपिटल और प्रीमियम निकालने को आ सकता है, तो आपको हमने सिखा दिया है हाउ टू कैलकुलेट. एंड प्रीमियम को फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट. और पार्टनर अगर गुडविल पूरी कैश में नहीं लाता है, तो जितनी भी अनपेड गुडविल होती है, देखिए जितना वो लेकर आएगा, सबसे पहले तो हम उससे लेंगे हम कि भाई दिस मच कैश ही ब्रॉट, दिस मच प्रीमियम ही ब्रॉट, ओके, एंड दिस मच कैपिटल ही ब्रॉट. टोटल कैश जितना भी वो लेकर आ रहा है, और फिर लाने के बाद प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में. साथ के साथ हमने ये अकाउंट भी ओपन करना होगा विच इज द न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट. कि सी को लाना था 50 और लाए हैं वो सिर्फ 35. तो प्रीमियम जो 35 लाए हैं वो तो डेबिट होगा ही होगा हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल करके 35. और साथ में अगर सी को 50 लाना था और 35 ही लाए हैं, तो सीज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 15,000. तो टोटल हमारा 50 हो गया. यही अमाउंट हमारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. दिस कैन बी आस्क्ड इन अ 1 मार्कर क्वेश्चन कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रीमियम और विद व्हाट अमाउंट A's and B's capitals will be credited, right? So keep yourself fully prepared for that also. Next comes is when a new partner does not bring. तो नहीं लाता, तो जितना भी वो कैपिटल अगर लाना था तो वो ले आया होगा. और गुडविल ना लाने की सिचुएशन में ये है लास्ट केस, पूरा अमाउंट जितना भी गुडविल का उसने लाना था, एंटायर अमाउंट गोज टू हिज करंट अकाउंट. और बाकी जो हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स, उन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को वो गुडविल मिल जाती है. उनके कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो. और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशो या सैक्रिफाइसिंग का कोई कॉन्सेप्ट ना गिवन हो, तो ओल्ड रेशो इज यूजुअली कंसिडर्ड इक्वल्स टू sacrificing ratio. Here we come to the last part of this goodwill concept, students, that is hidden goodwill. Matlab word itself is indicating that the goodwill is hidden. Means when the goodwill of the firm is calculated on the basis of net worth and the total capital of the firm, that is called hidden goodwill. Matlab तो क्वेश्चन में हमको गुडविल के बारे में कुछ नहीं दे रखा होगा, सिर्फ कैपिटल्स के बारे में दे रखा है, कोई रिजर्व, कोई रिवैल्यूएशन, ये सब दे रखा है, लेकिन गुडविल के बारे में कोई इंडिकेशन नहीं होगा. और तब वो आपसे गुडविल की एंट्री पास करने के लिए कहता है, तो दैट इज द केस ऑफ व्हाट, हिडन गुडविल.
अब हिडन गुडविल को निकालने का सीधा शॉर्टकट है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. Now you will understand how to calculate this total capital and adjusted capital. Total capital of the new firm कैसे निकालेंगे? जितना न्यू पार्टनर का कैपिटल है. सपोज द न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर और उसका कैपिटल है 1 लाख रुपीज. ओके, एंड हिज शेयर इज 1/5. So if I take the reciprocal of this, so 1 is equals to how much? 5 into 1 lakh, that is 5 lakh. तो 1 इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारा 5 लाख. ये क्या हो गया? दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. तो टोटल कैपिटल निकालना बहुत ही इजी है. हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म? न्यू पार्टनर की कैपिटल को बनाएंगे बेस, इज इक्वल्स टू कर देंगे उसका शेयर. तो जो भी अमाउंट निकल कर आएगा रेसिप्रोकल के बाद, दैट इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, राइट? एंड why 1 is the total capital? Because 1 means 100%. हम करते हैं ना रेशो निकालते टाइम, लेट द फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट बी 1. So firm share of profit means 100% capital is 5 lakhs. Please remember. Next आता है adjusted capital of the new firm. इसी को कहते हैं हम अकाउंट्स में net worth of the business. Actual capital invested in the business. देखिएगा दोनों जगह हमने न्यू फर्म यूज किया है, न्यू फर्म एंड न्यू फर्म. ये जो 5 लाख की कैपिटल है, इसमें ऑल पार्टनर्स की कैपिटल इंक्लूड होती है. से ए और बी ओल्ड पार्टनर्स, तो ए प्लस बी ऑफ न्यू फर्म. तो इसमें किसकी कैपिटल भी इंक्लूडेड होगी? सी, द न्यू पार्टनर ऑल्सो. प्लीज रिमेंबर, इस 5 लाख में न्यू पार्टनर की कैपिटल भी है. तो एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी, प्लस द कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर ऑल्सो अनडाउटेडली, प्लस एनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, देखिएगा. अगर ओल्ड पार्टनर्स के कोई रिजर्व, कोई पी&एल का क्रेडिट बैलेंस आई एम सेइंग, प्लीज रिमेंबर, वो गिवन है तो वो भी उनकी कैपिटल्स में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एडमिशन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन, और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है कि ओल्ड रिजर्व्स, ओल्ड पी&एल बैलेंसेस आर टू बी इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. और लेस क्या कर देंगे इसमें से? अगर कोई फिक्टिशियस एसेट या कोई नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन हो. फिक्टिशियस एसेट हमारे कोर्स के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ वेरी कॉमन फिक्टिशियस एसेट. एंड नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यू नो वेरी वेल, जिनसे हमारा बिजनेस का कोई रेगुलर डीलिंग नहीं होता, वहां अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स. सो नेट वर्थ और कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द न्यू फर्म कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज अंडर. इसका दूसरा फॉर्मूला भी है कि हमें बिजनेस में सन्ड्री एसेट्स दे रखे हैं और न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज. ये आपको पता भी है, एसेट माइनस लायबिलिटीज व्हाट? कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर. तो एडजस्टेड कैपिटल आपकी फर्म की ऐसे भी निकल के आ सकती है, not a big problem, right students? So both the ways you can solve the concept, but ये formulas आपको याद रखने होंगे. Total capital of the new firm minus adjusted capital of the new firm, and adjusted capital means capital of old plus capital of new. ये लेना मत भूलिएगा examination में. So here we just see one example to finish off the whole concept of hidden goodwill and the complete concept of goodwill. A and B are partners. Profit sharing ratio equal given in the question. 2 lakh and 3 lakh are their capitals. They admit C as a partner who brings 1 lakh as capital. C business को join करता है, 1 lakh capital लेकर आता है for 1/10 share. On the date of admission, book showed a balance of 55,000 in general reserve. एडमिशन के दिन 55,000 रुपीज हमारे जनरल रिजर्व में था, जो कि ऑब्वियसली ए एंड बी ने क्रिएट करा होगा पहले कभी इन द पास्ट. और 5,000 था अमाउंट हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस में. व्हाट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? फिक्टिशियस एसेट. एंड व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट स्टूडेंट्स? द एसेट्स व्हिच ओरिजिनेट फ्रॉम द बुक्स एंड एंड्स इन द बुक्स. इनका ओरिजिनेशन और डिसोल्यूशन सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है. दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट, फेक एसेट्स, वैल्यूलेस. सो अब हमसे बोलता है लास्ट में, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल ऑफ द फर्म. यहाँ पर कैपिटल दिया, यहाँ कैपिटल दिया हमको, यहाँ न्यू पार्टनर की कैपिटल दिया, और कुछ हमको रिजर्व के बारे में इन्फो दिया और एक फिक्टिशियस एसेट के बारे में इन्फो दिया. मतलब शुरू से लेके एंड तक हमें कहीं भी गुडविल के बारे में नहीं बोला उसने, और गुडविल की वो आपसे एंट्री मांग रहा है. तो व्हाट टू डू? दिस इज द केस ऑफ व्हिच गुडविल स्टूडेंट्स? टेल. हिडन गुडविल. एब्सोल्युटली राइट.
सो हिडन गुडविल को हम ऐसे ही रिकॉग्नाइज करेंगे, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करेंगे। अब तीनों स्टेप्स आपको पता ही है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, हाउ टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल। In this question, you can see the new partner is coming with 1 lakh rupees. He is bringing for how much share? 110. So 1 lakh equals to 110. So 1 is equals to how much? 10 lakhs. This is the what capital of the firm? New capital of the firm. The total capital of the new firm. And this includes all the three partners. Partner A, partner B and partner C also. यानी कि इस 10 lakh में तीनों की capital included है। तो अगर हम total capital को कंपेयर करें नेट वर्थ से फर्म की, यानी कि टुडे द एग्जिस्टिंग कैपिटल इट शुड हैव बीन 10 लाख रुपीस। जितनी गुडविल का पैसा हमने उससे जितना कैपिटल वो लेकर आया है उस हिसाब से फर्म की कैपिटल होनी चाहिए 10 लाख कैपिटलाइज वैल्यू। वेयर एज एडजस्टेड कैपिटल जो फर्म की है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल मींस व्हिच इज एग्जिस्टिंग इन रियल इन द बिजनेस। तो ए की कैपिटल इस टाइम कितनी एग्जिस्ट कर रही है एज पर द क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्लीज सी 2 लाख रुपीस। बी की कैपिटल कितना एग्जिस्ट कर रहा है 3 लाख रुपीस और जनरल रिजर्व कितना है 55,000। दिस विल आल्सो बी एडेड टू देयर कैपिटल। व्हाई? बिकॉज़ दिस आल्सो बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस टू बी सब्ट्रैक्टेड। व्हाई? बिकॉज़ इट्स अ फिक्टिशियस एसेट। तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके तीनों को, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को माइनस कर देंगे। लेकिन नहीं भूलेंगे कि हमें किसकी कैपिटल भी ऐड करनी है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ गलती होने का चांस रहता है। बच्चों को ये याद रहता है कि ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L सब प्लस कर दो सर, रिवैल्यूएशन का गेन है वो भी प्लस कर दो, परफेक्ट। बट सी की कैपिटल भी ऐड करनी पड़ेगी आपको, दैट इज 1 लाख इज ब्रिंगिंग। तो अगर आप सबको ऐड करके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को लेस कर दो, यू विल फाइंड द अमाउंट इज कमिंग 6,50,000। तो अब आप देखो यहाँ 10 लाख की एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए थी, कैपिटलाइज वैल्यू, जबकि उसकी नेट वर्थ कितनी है फर्म की इस टाइम 6,50,000। सो स्टूडेंट्स कैन यू कैलकुलेट योरसेल्फ गुडविल, बताइए कितनी गुडविल निकलेगी। एब्सोल्युटली राइट, टोटल कैपिटल 10 lakhs, न्यू फर्म्स के एडजस्टेड कैपिटल है 6,50,000। तो होल फर्म्स गुडविल इज कमिंग 3,50,000। बेटा याद रखिएगा ये गुडविल एक पार्टनर की नहीं होती कभी भी, दिस इज द गुडविल ऑफ द होल फर्म। ये पूरी फर्म की निकल के आती है, दिस हिडन गुडविल इज द गुडविल ऑफ द होल फर्म। अब सी का शेयर कितना है इसमें से 3,50,000 फर्म की गुडविल है, सी इज कमिंग फॉर 1/10 शेयर। तो व्हाट इज हिज शेयर इन द होल फर्म्स गुडविल 35,000। ये पैसा इन्होंने लाना था जो कि वो नहीं लाए, तो वो सिर्फ कैपिटल ही लेकर आए हैं। तो कैपिटल की लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, सिंपल, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन कैश करके हमारी एंट्री आ जाएगी। अब अगर हम आपसे बोलें कि जर्नल एंट्री फॉर गुडविल करो, तो आप इमीडिएटली रिकॉल करोगे कि सर यहाँ तो पार्टनर की गुडविल अनपेड है, दिस इज अनपेड प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि गुडविल इज पेड और अनपेड और व्हाट। तो दिस इज अनपेड प्रीमियम। और अनपेड प्रीमियम के केस में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर अपसेट हो जाता है, और पार्टनर अपसेट होने के बाद कौन सी एंट्री पास करती है फर्म, पार्टनर का कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं बताइए, न्यू पार्टनर्स विच अकाउंट, करंट अकाउंट। तो एंट्री का बनकर आएगी हमारी विद अनपेड शेयर ऑफ गुडविल, सीज करंट अकाउंट डेबिट, जितना गुडविल वो लाना था नहीं लाया अपने शेयर के अकॉर्डिंग, लेकिन अनपेड हो या पेड हो, मगर जाता जरूर है कैपिटल अकाउंट्स में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब आप बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो तो इसमें गिवन ही नहीं है सर। ऑफ कोर्स व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो या उसके रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो फिर हम ओल्ड रेशो जो कि क्वेश्चन में इक्वल दे रखी है, इसी को ही हम क्या मान सकते हैं, वी कैन कंसिडर इट एज ए सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो वी विल डिवाइड इट इक्वली बिटवीन द partners as 17,500 and 17,500. I hope you must have understood it, and we will be doing questions based on these concepts of goodwill in the next session. इस सेशन को आप दोबारा देखिएगा, watch it twice, thrice, so that you can strengthen your concept और examination में zero error performance. So all the best students. Thank you. I wish you all the very best for your examinations. Thank you.